भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we'll read from Srimad Bhagavatam. This is Canto 3, Chapter 25 and text number 25. Sata prasangan mama virya samvido. Satam prasangan mama virya samvido. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Bhavanti ritkarna rasayana katha. Tajjoshana ashu apavarga vartmani. Tajjoshanad ashu apavarga vartmani. Shraddha ratir bhakti अनुक्रमिष्यति. श्रद्धारतेर् भक्तिरनुक्रमिष्यति. सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो. भवन्ति ऋत्कर्ण रसायना कथा. तज्जोषणाद् आशु अपवर्ग वर्त्मनि. श्रद्धारतेर् भक्तिरनुक्रमिष्यति. सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो. भवन्ति ऋत्कर्ण रसायना कथा. तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि. श्रद्धारतेर् भक्तिरनुक्रमिष्यति. सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो. भवन्ति ऋत्कर्ण रसायना कथा. तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि. श्रद्धारतेर् भक्तिरनुक्रमिष्यति. सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो. भवन्ति ऋत्कर्ण रसायना कथा. तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि. श्रद्धारतेर् भक्तिरनुक्रमिष्यति. Satam of pure devotees. Prasangat through the association
Mama, my, Virya, wonderful activities. Samvidaha, by discussion of. Bhavanti, become. Rit, to the heart. Karna, to the ear. Rasa, ayana, pleasing. Kathaha, the stories. Tat, of that. Joshana, by cultivation. Ashu, quickly. Apavarga, of liberation. Vartmani, on the path. Shraddha, firm faith. Ratihi, attraction. Bhaktihi, devotion. Anukramishyate, will follow in order. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Vishwa Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Let's repeat the translation. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begins. Purport by Srila Prabhupada. So very beautiful purport. बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं. सो विल ट्राई कि हम पर्पट को डिस्कस करते हुए रीड करेंगे. लेट अस ट्राई. द प्रोसेस ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस इज डिस्क्राइब्ड हियर. क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? द प्रोसेस, वो विधि है, ये जो श्लोक है ये आपको एक प्रोसेस देता है. क्या प्रोसेस है? ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम जितने भी भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ऑल ऑफ अस वी वांट दिस, इजंट इट? हम सब लोग चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस. बोथ आर सेम. तो वो प्रोसेस यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है. वो विधि बताई गई है. क्या तरीका है, वो क्या विधि है. इट्स वंडरफुल वंडरफुल पर्पट. सो यदि मैं आपसे पूछूं, हम सब लोग चाहते हैं, जस्ट लाइक वी ऑल वांट टू बिकम, सपोज a person who want to become an IAS or whichever post he want to acquire. So he must be knowing about the importance and the value and something about that particular designation, है ना? तो let us
understand from the assembled devotees what is this advancing in Krishna consciousness means. हम सब लोग चाहते हैं एडवांस करना. कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग पूरा चाहते हैं? सब पूरा चाहते हैं. वो प्रभु जी थोड़ा कम चाहते हैं. कम चाहते हैं, पूरा चाहते हैं. दर्द कर रहा है. So, though we all are very enthusiastic and very much eager to advance in Krishna consciousness, but are we really understand what is this advancement in Krishna consciousness means? Yes. बताइए. Develop our consciousness to God consciousness and ये तो यहाँ पे लिखा है एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस को आप ऐसे बोल लीजिए डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. and जितना हमारे जितनी hand words कैसे पता चलेगा कि यस ये प्रभु जी एडवांस कर गए हैं, ये प्रभु जी अभी एडवांस नहीं किए हैं, अभी ये इनको एडवांसमेंट करना है, ये तो बहुत एडवांस कर गए हैं. वो क्या सिम्टम्स होंगे? इसमें है आंसर, आपको जस्ट थोड़ा सा विचार करना है. सिंसियरिटी नहीं, कुछ स्पेसिफिक बताइए. डिवोशनल सर्विस में एडवांसमेंट होगा. हाँ, दैट इज देयर. हाँ, टेस्ट आने लग जाएगा डिवोशनल सर्विस में. जैसे मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूँ. सपोज यू वांट टू अक्वायर अ पोस्ट. मान लेते हैं कि आपने आईआईटी क्रैक करना है या एक अच्छा यू वांट टू प्लेस्ड योरसेल्फ समवेयर वेरी गुड एमएनसी और सपोज गूगल. तो आपको पता है कि मुझे जो है, या फिर सपोज आईएएस में भी देयर आर मेनी डिफरेंट नो फंक्शंस आईएएस के. तो आपको पता है कि हाँ आईएएस तो करना है लेकिन मुझे ये बनना है, आईएएस के अंदर मुझे ये क्रैक करना है. आई डोंट वांट टू बिकम अ पीए, आई वांट टू बिकम कलेक्टर. पीए भी होता है इस राइट, पता है. तो वी वांट टू नो कि वो एग्जैक्टली क्या फंक्शंस होंगे एक पर्सन के. देयर बाय ऐसे तो कोई भी घूमता फिरते बोलेगा कि मैं आईएएस हूँ या मैं फला यूनिवर्सिटी से या फला इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड हूँ. बिकॉज यहाँ पर डिग्री मिलता नहीं है कि नाउ आपका जो है नो यू आर ग्रेजुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर डॉक्टरेटेड इन कृष्णा. ऐसा तो नहीं होता है. सो हाउ टू नो, हाउ डू वी नो? हाँ, एक तो ये आंसर है. वेरी नाइस. और हाँ, और हाँ अब अच्छे आंसर आ रहे हैं. नाइस. और नाइस. वेरी नाइस. सरेंडरेंस. यस. हमारी श्रद्धा बढ़ता है. अगर हम बहुत सिंपल आंसर बात करें, हमारी श्रद्धा बढ़ता है. हमारा जो फेथ है वो डे बाय डे क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो बाय सीइंग द एक्सटर्नल्स, वंस एक्सटर्नल्स वी कैन नॉट डिटरमाइन इनका कितना फेथ है, इनका कितना फेथ है, इन प्रभु जी का कितना फेथ है या उन प्रभु जी का कितना फेथ होगा. बाय सीइंग देयर externals we cannot determine. Therefore we should never judge a Vaishnava. We should never judge a Vaishnava. Never judge means never conclude his personality by seeing his externals. Oh, Prabhu ji to ऐसे हैं. See, most of the time we don't go in that particular frame of mind जहाँ पर हम स्पेशली प्रभु जीज, बट आपस में भी हम प्रभु जीज है राइट. सो दिस association of pure devotees, as Prabhupada is writing in the
translation only. Then this discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead becomes very pleasing and satisfying in the association of devotees. This is the secret. यह है विधि. So, by the mercy of Prabhupada, Nitai Gauranga, here we are living in the association of devotees. है कि नहीं? हम सब लोग भक्तों के संग में यहाँ पर रहते हैं. आप सभी लोग यहाँ पे ही रहते हैं, फोक में ही रहते हैं. Some of you are living outside और लेकिन most of time आप यहाँ पर spend भी करते हैं, अपना quality time देते हैं. So it's spending time in the association of devotees, cultivating Krishna consciousness in the association of devotees. Cultivating means जैसे खेत को जोतते हैं, when we cultivate a field, तभी अच्छी फसल होता है ना. अगर अच्छा फसल होना है तो क्या होना है? Cultivation should be very, very proper. Improper cultivation will bring improper crops. तो हम सब लोग हम उस श्रेणी में आते हैं जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं पता है? एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इस कलर में उनको भक्ति लता बीज मिला है, जो पेंट शर्ट में उनको भी भक्ति लता बीज मिल गया है, या जो एक माला जप करते हैं उनको अभी 50% भक्ति लता बीज मिला है, या उनको अभी जस्ट बोला गया आपको मिलेगा. नहीं, जो भी टच में आ गए हैं सबको क्या मिल गया है? आई वॉज रीडिंग इनिशिएशन लेक्चर्स, तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे ही आप गुरु के संपर्क में आते हो, एक शुद्ध भक्त गुरु आचार्य के संपर्क में आते हैं, तो उसी समय से आप क्या हो जाते हैं? द्विज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? मतलब इट्स रियली अ वेरी रेयर पोजीशन, वेरी रेयर पोजीशन टू गेट. जस्ट लाइक हमारे लिए रेयर क्या है? टू बिकम एन IAS और टू acquire a post in some very reputed MNC और such institutes. ये सब हमारे लिए वो है बड़ा रेयर टू गेट, है ना. वी हैंकर एट टाइम्स, वी एस्पायर फॉर इट, वी बिकम एम्बिशियस फॉर दोज थिंग्स एंड वी वर्क वेरी हार्ड, isn't it? वो तो अभी मिला नहीं है हमें. मिल गया क्या? नहीं मिला ना. मिल जाएगा शायद अगर हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, endeavors डालेंगे. बट वन थिंग दैट वी कैन नॉट गेट बट वी हैव ऑलरेडी गॉट इट. व्हाट इज दैट? भक्ति लता बीज. यह है भक्ति लता बीज, जो कि हम सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है भक्ति लता बीज. और उसको कल्टीवेट करने के लिए क्या चाहिए? एक, जैसे कि आप गेहूं को अगर बरसात में बोओगे तो चलेगा? समझते हैं कुछ लोग यहाँ पर खेती? कितने लोग समझते हैं? समझते हैं ना. तो गेहूं को बरसात में बो सकते हैं, रेनी सीजन में बोएंगे चलेगा? क्यों? एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव. क्या है? वो जो वातावरण है वो अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप वहाँ पर क्या करें, अभी गेहूं की खेती करें. तो कब करते हैं फिर? विंटर्स में शुरू करते हैं, है ना. अभी कटने में आ गया. उसी तरह से ये जो भक्ति लता बीज है, इसको कैसे कल्टीवेट करते हैं ताकि क्या बन जाए? भक्ति लता. ये भक्ति लता की बीज है, अभी भक्ति लता बनेगा. और ये लता कहाँ चली जाती है? शिला प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु पर इसमें चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं, ये गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरणों में जाके वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे जाके शरण लेती है. लता जो होती है ना, हमेशा ग्रो करती है ना. तो इसको कल्टीवेट करने के लिए चाहिए, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, इन दी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. सो भक्तों के संग में ही कल्टीवेट हो सकती है. आप समझ रहे हैं?
भक्तों का संग बहुत 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 जरूरी नहीं, इट इज द ओनली नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। मेनी ऑफ अस पहले हरिनाम आया जीवन में कि पहले भक्ता है? भक्ता है। समझ रहे हैं आप? आई थिंक ये सिंगल एग्जाम्पल इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। क्या वो शुद्ध भक्त थे जो हम संपर्क में आए थे जिनके? नहीं। ठीक है, जहां तक प्रभुपाद से सुना है, ऐसा प्रभुपाद के अलावा तो और कोई शुद्ध भक्त है नहीं अभी तक, जितना हमें समझ में आता है। तो कोई भक्त के टच में आए थे आप? तो प्रभुपाद के डायरेक्ट टच में आए थे। उन भक्त, वो जो कोई भक्त थे वो इंस्ट्रूमेंट बने थे आपके लिए, राइट? वो तो शायद शुद्ध भक्त नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटी यहाँ पर जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं प्योर डिवोटी, यहाँ पर नीचे में देखिए इट्स, अच्छा प्योर डिवोटीज, प्योर डिवोटी कौन होता है? This is the ideal definition of a pure devotee. But there are many aspects to this definition. Almost 2 years back, we were on the pilgrimage to Jagannath Puri. तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अच्युत कृष्ण प्रभु। So he was sharing. एक तो प्योर डिवोटी जो आपने बताया वो है। अनदर डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोटी इज वन हु इज प्योरली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्योर डिवोटी। मतलब इस डेफिनेशन से आप पाएंगे कि देर आर नाउ मेनी souls can be pure devotees. So many of us, irrespective of our current reality, we are trying our best with pure heart. We are trying our best to follow the instructions given to us by Srila Prabhupada, है ना? तो Prabhupada recognizes that soul. तभी तो हम एडवांस करते हैं, है ना? लेट अस रीड फर्दर। देखो प्रभुपाद क्या लिखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वन मस्ट सीक द एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर कृष्णा कॉन्शियस। प्रभुपाद उस विधि को एलाबोरेट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को एलाबोरेट कर रहे हैं परपट के अंदर। द फर्स्ट पॉइंट इज that one must seek the association of persons who are Krishna conscious, जो लोग कृष्ण भावना में है। See, more or less हम, प्रभु जी आप तो बोल रहे हैं प्योर डिवोटी, ये तो प्रभु जी मंगला में नहीं उठते हैं, ये कैसे प्योर डिवोटी हुए? ये प्रभु जी तो ये तो इनका जप करते करते इनको 11 बज जाता है रात को। तो करते तो 4 माला ही है वैसे, लेकिन फिर भी 11 हो जाता है। इनसे पूछो तो वो बोलते हैं प्रभु मैं 24 आवर हरि कीर्तन करता हूँ। सो देर आर डिफरेंट डिवोटीज प्रैक्टिसिंग डिफरेंट लेवल्स। तो कैसे प्योर डिवोटी हुए? ये प्रभु जी तो तमीज़ से बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं। ये प्रभु जी मेरा प्रसाद, आधा प्रसाद तो मेरा खा जाते हैं। या फिर ये प्रभु जी तो हैं दिन में जितना मैं रात को नहीं सोता उतना ही दिन में सोते हैं। सो हाउ कैन ही बी ए प्योर डिवोटी प्रभु? वेरी डिफिकल्ट। नो, इन विच एवर एक्सटेंट अ सोल, अ प्रैक्टिशनर इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट मच प्योरिटी ही हैज गॉट। उतना तो प्योर है। अच्छा आप बताइए कि बाहर वाले जो डिफरेंट सोल्स, दोज हु आर वेंडरिंग आउटसाइड, उनसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे है ना?
इसमें तो कोई संशय नहीं है क्या किसी को? जैसे कभी हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो नॉट पुस्तक वितरण, हाँ, दिस हैपेंड इन Prabhupada's time when Prabhupada was physically walking on this earth. So it comes in SSR, Science of Self Realization. अगर आपको ध्यान है तो एक लेडी है, वो पत्र लिखती हैं प्रभुपाद को. What kind of devotees and disciples you have got? They don't speak properly. Very humiliating way they speak. They don't have any value for the outsiders. Such kind of stuff. So how can they are a good practitioner? She completely, no, that way her language was very devastating towards those devotees. But Prabhupada says in that particular, in the last line of that particular chapter, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट प्रभुपाद उन लेडी को समझाते हैं. प्रभुपाद पहले एक्सेप्ट करते हैं, यस दे आर प्रैक्टिशनर्स एंड दे आर, बट वन थिंग दैट दे हैव सरेंडर्ड दैट कैन नॉट बी रॉन्ग, ऐसे कुछ बोलते हैं प्रभुपाद. नो नो, वन लास्ट लाइन इज देयर, वेरी ब्यूटीफुल लाइन. विल ट्राई टू कवर इट. Somebody can find out last line of that purport. मुझे तो पता भी नहीं है वो एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर है. हाँ, अप्रिशिएट करते हैं. एनीवे, so that's the position of a practitioner. कभी कभी हम जब प्रभुपाद का पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि दिस इज ओनली मेंट फॉर एंड दीज काइंड्स ऑफ अप्रिशिएशन, और ये जो वैल्यू है ये केवल प्योर डिवोटीज को देना है, प्रैक्टिशनर को थोड़े देना है. एट टाइम्स वी फाइट विद ईच अदर, और वी में अगर एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनली तो फाइट चली जाता है, परेशान होते हैं एट टाइम्स. एंड द लॉस इज ऑन आवर पार्ट. वो क्या है? वी लूज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. एंड इफ नॉट लूजिंग द एसोसिएशन, हम क्या करते हैं, हम वो जो अपॉर्चुनिटी है to derive benefit of devotee association, we lose it. Now what Prabhupada is telling further in the purport is, you see, the beautiful line, without such association, इस प्रकार के सत्संग के बिना one cannot make advancement. ऐसे ही बोल सकते हैं कि एडवांसमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा या एडवांसमेंट विल बी स्लो, है ना, ऐसे है ना. लेकिन हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? कैन नॉट. बिल्कुल क्लियर है. वी कैन नॉट मीन्स वी कैन नॉट. सो प्रभुपाद यहाँ पर वही बता रहे हैं, देखिए यहाँ. सो इवन इफ हमने सुना है, सबने सुना है, अपीछे से दुराचार भजते माम. दुराचार, दुराचार का है ना, सबका अलग अलग होता है. हम लोग जब भक्ति करेंगे तब हम सदाचार बनेंगे. तो दुराचार डजंट मीन कि ये तो प्रभु ये दुराचार तो मुझे पसंद नहीं है, ये वाला दुराचार तो चल जाएगा, या फिर ये वाला दुराचार तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ प्रभु. See, durachar means Krishna has said, so we have to manage. We have to manage. हम क्यों बात कर रहे हैं ये? Because we all want to advance in Krishna consciousness. Now, एक साइड आप एडवांस करना चाहते हो, just like you want to secure a post, but you don't want to work hard for it. ऐसे तो चलेगा नहीं. हालांकि उसके लिए जितना हार्ड वर्क करना होता है ना, उसका 1% कर लें तो हम लोग शुद्ध भक्त बन सकते हैं in this life, मेरी लाइफ, है ना.
सो वही उसी डायरेक्शन में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या है, कहाँ पर हमें अपना फोकस, अपना एनर्जीज इन्वेस्ट करना है. दैट इज़ टू मेंटेन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बिकॉज विदाउट विच दैट्स द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. मीन्स वही एक उत्तम वातावरण है जिसके अंदर आप जो भक्ति लता बीज हमें मिल गया है, सबको मिल गया है ना. किसी को डाउट है भी प्रभु मुझे लग रहा है मुझे मिला नहीं, आपको लग रहा है वो आपकी गलत फहमी है, आपको मिल गया है. तो प्लीज़ डोंट फील कि आपको मिला नहीं है. वी शुड फील वेरी फॉर्चुनेट योरसेल्फ, बिकॉज कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं. किसको बोल रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? कोनो भाग्यवान जीव, नॉट जस्ट भाग्यवान जीव, कोनो भाग्यवान जीव. जब कोनो भाग्यवान जीव बोला है मीन्स इज द rarest fortune that one can get. Rarest fortune. What is that? Guru Krishna Kripa Pai. Means we have already got the mercy of Guru and Krishna. Therefore we are carrying this Bhakti Ratabdi, carrying this. So, देखो क्या लिखा है. As you will say, to err is human. Therefore in the neophyte stage, we all are in the neophyte stage. एक्चुअली हम नियोफाइट स्टेज के भी नियोफाइट स्टेज में हैं. समझ में आया? नियोफाइट भी एक स्टेज है, उस स्टेज का भी एक नियोफाइट स्टेज है. उस स्टेज में हैं हम लोग, क्योंकि नेक्टर ऑफ डिवोशन बोलते हैं जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आता है जो ध्रुव महाराज है वो भी नियोफाइट स्टेज में है. तो आप देख लीजिए आप कौन से स्टेज में. सो वी मे ऑलवेज एक्सपेक्ट सम डिस्क्रिपेंसीज. अभी सब लोग न्यूफाइट स्टेज में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे. देखो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा ना तब तक गड़बड़ तो होगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. वो गड़बड़ से कभी हम खुद परेशान होंगे, कभी हम हमारे एसोसिएशन में जो डिवोटीज हैं जिनके साथ हम रहते हैं कभी वो परेशान होंगे. लेकिन कितना परेशान होना है वो हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पे बहुत 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 रिलाई करता है. आप बहुत परेशान होके फोक छोड़ भी सकते हो और यू मे नॉट माइंड एट ऑल. हाँ, so what Prabhupada is writing here, see. So we may always expect some discrepancies. Kindly see the thing in this light and forgive their small mistakes. तो गलती हो जाती है, माफ कर दो. Now Prabhupada is writing the golden lines. The big thing is that they have given everything. They have given everything, even their lives. बचा क्या अभी देने के लिए? To Krishna. They have given everything, even their lives to Krishna, and that is never a mistake. ये कोई गलती नहीं. गलती तो की उन्होंने, समझ रहे हैं आप? So we all are giving our lives to Krishna. नहीं प्रभु आपने दिए, हमने तो नहीं दिए अभी. नहीं. Life means you are giving your vital energy to Krishna. मैं लाइफ दे के भी वहाँ अगर सोता रहूँगा आश्रम में तो कैसे काम चलेगा बताइए? तो आप लोगों के लिए तो मैंने लाइफ दे दी है, लेकिन आई नो वेरी वेरी वेल कि मैंने कितना दिया है. सो व्हेन वी इन्वेस्ट अ टाइम एंड एनर्जी टू फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा, दैट इज व्हाट इट मीन्स गिविंग लाइफ टू कृष्णा, एंड दैट इज नेवर अ मिस्टेक. सो इतना हमें रिगार्ड होना है डिवोटीज के लिए, नॉट डिवोटीज, एवरी वन ऑफ अस. We should have regard for each other. इतना regard होना है. Let us read further. Now, बोल रहे हैं simply without such association one cannot make advancement. Now Prabhupada is writing again very strong statement. Simply by theoretical knowledge और study, खूब बुक रीडिंग कर लेते हैं हम, खूब चैंटिंग कर लेते हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब सेवा करते हैं, बट वन कैन नॉट मेक एनी अप्रिशिएबल एडवांसमेंट if we are not able to
रिलेट विच ईच अदर। वी देखिए हम खूब सर्विस कर लेंगे, सब कर लेंगे, बट जब बात आती है एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बिहेव करने की तो बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है एट टाइम्स। झेलने की बात कर रहा हूँ, डिफिकल्ट है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है ना एक दूसरे को। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं डिवोटी एसोसिएशन मीन्स नहीं प्रभु बस जब तक अच्छा लग रहा है तब तक बढ़िया है। डिवोटी एसोसिएशन मीन्स वी हैव टू एट टाइम्स झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई बीमार हो गया है तो अब उसके सिम्टम्स जो हैं यू मे नॉट लाइक। प्रभु मैं फीवर तो एडजस्ट कर लूँगा लेकिन जुकाम एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ किसी को, ऐसा नहीं होता ना, मतलब वो तो कभी भी किसी को भी कैसे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। सो वी हैव टू एडजस्ट। सो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? वन मस्ट गिव अप the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without such association of devotees one cannot understand the activities of the Lord. So ज़रूरत हमारी है, ज़रूरत हमें है डिवोटी एसोसिएशन की, ना कि उन डिवोटीज़ को हमें एसोसिएशन देने की। ज़रूरत हमारी है तो हमें तो कुछ पेमेंट तो करना चाहिए। तो पेमेंट क्या है बताइए? हाँ, और वेरी नाइस। और समवन एल्स? चलो, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो मायावादी हैं, समझते हैं मायावादी जो कृष्ण को क्या बोलते हैं, सब माया है। और जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान का कोई विशेष स्वरूप नहीं होता। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर। क्या? पर्सनल एक्टिविटीज़। भगवान व्यक्ति हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं। बोल रहे हैं कि ये जो है ये क्यों नहीं समझ पाते, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों का संग नहीं है तो क्या होता है, वो फिसल जाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ पाते हैं। नाउ फर्दर व्हेन वी रीड उसी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड किया जा रहा है। एंड इन द towards the last lines of the purports, Prabhupada writes golden statement again. Association with devotees means association with the Lord. भक्तों का संग मतलब भगवान का संग। ये तो बहुत बड़ा बात हो गया नहीं, बट दैट्स द रियलिटी। प्रभु ये कैसे भगवान का संग हो सकता है? ये तो प्रभु जी भागवतम में सो जाते हैं, इनको तो भगवान की कथा मन ही नहीं लगता है, तो इनका संग तो माया का संग प्रतीत होता है। प्रभु ये प्रभु जी जब भी बाहर जाते हैं तो इनको हमेशा वो डिज़ायर आती है कि थोड़ा ये खा पी लेते हैं। ये तो खुद ही माया में रहते हैं, तो ये भगवान का संग कैसे देंगे मेरे को? ये है एक्सटर्नल्स। डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल विल ट्राई आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट day by day to improve ourselves in Krishna consciousness. But कुछ गड़बड़ें बाकी हैं, बिकॉज अभी हृदय तो शुद्ध नहीं हुआ है, आवर हार्ट इज स्टिल इम्प्योर। तो वो तो रहेगा, जब तक हार्ट प्यूरिफाई नहीं होगा तब तक तो नहीं जाएगा ये सब चीज़ें, कितना ही हम एफर्ट लगा लें। हमारा एफर्ट कहाँ जाना है? प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट पे। ऐसा है। Then, however materially ambitious we are, somebody मैं कल ही सुन रहा था, MPP से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी what do you say for a person who is having material ambitions and at the same time is pursuing Krishna consciousness? Is it okay to have material ambitions while pursuing Krishna consciousness? So MPP said, there is no harm
But the thing is, those material ambitions, if we are not having any connection with Krishna, then of no use. सर एमपीपी ने बोला कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे साथ एक मित्र थे, वो भी सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग किया था। मैं इधर भक्ति में आ गया और वो अपने करियर को परस्यू करने लगे। सो रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो एमपीपी ने उनसे पूछा, अच्छा अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप? तो बोल रहे हैं, आई एम मीन्स मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ, और ऐसा कुछ ऑफ फ्लैट्स ऑफ 60-50 फ्लैट्स, बस इतना ही। मतलब होता है ना कि फ्लैट्स बना रहे हैं, कुछ अच्छा प्रीमियम अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, 60-50 नंबर्स। फिर उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोले कि रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑफ 600 अपार्टमेंट्स इन वैकुंठा हिल। क्या समझे? कुछ समझे? सो एम्बिशंस व्हेन वी हैव प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्ण, देन फिर वहाँ पर अपना जो कार्मिक लिमिटेशन है ना, हमारे को जितना भी मिलना है ना, हमें ऑलरेडी वो अमाउंट इतना ही फिक्स है। वो जब तक हम अपने लिए अक्वायर कर रहे हैं चीज़ें, वो फिक्स है। और जब हम गुरु एंड कृष्णा के लिए अक्वायर करना शुरू करते हैं, देन देयर इज नो बार, देयर इज नो लिमिट। सो अगर मटेरियली एम्बिशियस होना है तो ऐसे हो, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? डिवोटी एसोसिएशन, बिकॉज विदाउट विच इवन दैट मैच्योरिटी विल नॉट कम अबाउट। सो व्हाट प्रभुपाद इज फर्दर राइटिंग, ये तो जस्ट हमारा डिस्कशन में आया तो हमने फर्दर उसको डिस्कस किया। सो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स एसोसिएशन विद द लॉर्ड। ये आप समझिए। इस अगर आज का टेक अवे हम कुछ लें तो हमें पता होना चाहिए, एसोसिएशन विद डिवोटीज मीन्स एसोसिएशन विद द लॉर्ड। नाउ हाउ टू अप्रिशिएट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इन डे टू डे लाइफ, दैट्स द लिटिल बिट चैलेंजिंग। हमें वो हैबिट ही नहीं है कि हम बहुत ही स्मॉल जो फेवर्स हैं जो कि हमें मिल रहे हैं विद ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर वी आर गेटिंग वेरी, वो आपको एमपीपी आके दे के नहीं जाएंगे। एमपीपी तो बस आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे, मैक्सिमम एक लाइव लेक्चर सुन लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ एसोसिएशन है जो कि हम लोग सीनियर वैष्णवों का लेते हैं, या फिर वी टेक एसोसिएशन ऑफ प्रभुपाद। एंड देयर आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ टेकिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स गेटिंग फेवर्ड बाय what that winter is doing. What is the relation of winter with that wheat? It is favoring. वो फेवर कर रहा है ना, वो एटमोसफियर फेवर कर रहा है किसको? कल्टीवेशन को। सिमिलरली एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स गेटिंग फेवर्ड बाय द डिवोटीज। सो नाउ एट वन लेवल वी आर गेटिंग फेवर्ड बाय senior Vaishnavas, quite senior, MPP, CPP and other many senior Vaishnavas, Amritasana Prabhu, like this many senior, recently we all had the association of Radhapriya Prabhu, right? So those kind of association definitely they give us spiritual maturity. But apart from those association, another association we have, that is association of devotees among which we are living. So वो जो small favors that we are getting from those devotees, we cannot get from Radha Priya Prabhu or with other senior devotees. वो मैक्सिमम आपसे कुछ ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आपके साथ रह के आपको स्मॉल चीज़ों के लिए फेवर नहीं कर सकते। बट बिलीव मी और नॉट, वो जो स्मॉल फेवर्स है ना, अगर वो ना मिले ना तो MPP's लेक्चर वॉन्ट टू वर्क। नहीं करेंगे। सो नाउ लेट अस हैव वन प्रैक्टिस
to appreciate small favors that we are getting from our community of devotees, practitioners you may say. So what is that practice? In ashram जो भी भक्त लोग रहते हैं, at least at my level I recommend them. Nitasana Prabhu has introduced this in our even ashram also. So I would like to introduce this. Very simple. It's maximum 2 minutes activity. Everyone is ready? Half ready, full ready. So that is आपको एक वैष्णव को एक दिन में एक वैष्णव को जेन्युइनली दिल से धन्यवाद कहना है. क्या कहना है? थैंक यू प्रभु. फॉर व्हाट? फॉर दैट very small, puny, acknowledgeable, that is not worthy to acknowledge even. For those favors also we should, with all our heart, we say thank you प्रभु. For example, आपको पता नहीं चलता है किसी ने आपको मंगला के पहले उठाया था, कितनों ने बोला धन्यवाद प्रभु आपने उठा दिया? नहीं बोला ना? तो फिर क्या करेगा एमपीपी का भागवतम बताइए? उठाया नहीं होता तो आप मंगला ही नहीं कर पाते. एमपीपी भागवतम बोले थे कल लास्ट टाइम मंगला करना है. तो अब बताओ, इक्वल थैंक यू आना ही नहीं आना है बताइए? The gratitude that we have for those devotees, same gratitude we can have, isn't it? Because ultimately practice में तो उनकी फेवर से हुआ ना. समझ रहे हैं? So there are many small unrecognizable favors we are getting among from these devotees among which we are sitting right here. So उनके लिए भी ये प्रैक्टिस तो हमें करना ही चाहिए. And then you will see, जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, you will immediately see your chanting quality has increased. श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति. That's the beauty of Krishna consciousness. Immediately you can see the result. The problem is we don't know the approach. So बस इतना ही. बातें तो हम कितनी ही कर लें, बट करना क्या है? That is, everyone is ready. करेंगे सब लोग? इसका जर्नल मेंटेन कीजिए कि आज मैंने इन प्रभु जी को धन्यवाद किया. क्यों? तो वो पता होना चाहिए. यू राइट दी स्टेटमेंट, प्रभु जी ने आज मुझे सपोज मंगला के लिए उठाया, या फिर एक्चुअली आज तो मेरे को स्वीट मिलता भी नहीं, वो प्रभु जी ने मेरे को स्वीट रख लिया तो आज मुझे स्वीट मिल गया. सी इट्स वेरी सिंपल फेवर्स दैट वी गेट. सी कितना ही लेक्चर सुन लो, जब स्वीट नहीं मिलेगा तो चेतना खराब हो जाता है ना भाई? आप लोगों का तो पता नहीं, हमारा तो खराब हो जाता. तो प्रभु ने चेतना खराब होने से बचा लिया, isn't it? So like this, there are many things we should say दिल से. क्या? थैंक यू प्रभु. ऐसे अभी तो आप लोग आपस में ही हैं, तो जितना हो सके सामने में जाके बोलें तो और अच्छा है. थोड़े गट्स डेवलप कीजिए, और नहीं तो एटलीस्ट मैसेज या कॉल पे तो बोलना ही चाहिए, है ना? हार्ट इन हार्ट यू मस्ट नो द रीजन कि हम क्यों बोल रहे हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हरे कृष्ण. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. गौर भक्त वृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. निताई गौर प्रेम. हरि हरि बोल.